All right. Uh, Assalamu alaikum, students. We are Walaikum salam. we are continuing with our deep learnings 16th lecture. Uh, in this, in deep learning, after covering our basics of Python, in that especially the NumPy, which makes the major contribution towards the machine learning thing we learned, and then we are doing the mathematics for deep learning. And in that mathematics, we have started with the linear algebra and we are continuing with the linear algebra part of the machine learning. Okay. All right. Do you have any questions up till now for the things which we have covered? No sir. Okay. All right. सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही Okay. Let me see. Hello. है। यस सर। अब ठीक है? यस सर अब ठीक है। ओके। ऑलराइट। अच्छा, इसमें ओके हम ये जो वी हैव डन the linear algebra thing. Hopefully, we finish that today. Uh, inshallah. Um, we looked at this. Okay, we did this. We did this. Example, we have done that. We have done that. Okay, we did this last time. Okay, we learned about the span, um, solving of equations, using of a um, we looked at it how in machine learning we do this thing. We learned about the norm, and from the norm we were looking at this LP norm, looked at the distance, and then we were at Frobenius norm. Our last lecture we had done the norm thing, LP norm, and then we were on this slide, and it was related with the norm, and we saw it is applicable in machine learning. All right. Okay. The Frobenius norm. Uh, we learned about the L2 norm and LP norm. Basically, the idea was for the norm, which we have learned, that as we used to find the Euclidean distance between 2 points, which was a kind of distance between two vectors, or 2 points. Okay, a direct distance between 2 points is called the Euclidean distance, right? In Euclidean distance, we take the square of each कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. यहाँ 2 डायमेंशन की एग्जाम्पल हमने देखी थी, यही एग्जाम्पल 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन में चलेगी. तो यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ अ वेक्टर which has any number of dimension is that for each component of the vector you square it. अगर इसीलिए इसको L2 नॉर्म कहते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस. यू स्क्वायर ईच x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर. You sum all those squares over here, and in the end you take the under root. So if the squares were power 2,
after summing all the components by after taking square, you take 1/2 of the whole. Under root, taking under root means calculating 1/2. So that was our वेल नोन यूक्लिडियन डिस्टेंस थिंग। ठीक, जैसे अगर आपके ये एग्जांपल हो, ये है और ये पॉइंट इसका x2 है, लेट्स से y2 है, यानी ये x1 2 है, xy2, इसका स्क्वायर अंडर रूट 8 का स्क्वायर। तो ये आपकी ये वेक्टर जो इसका एक किस्म का रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस विच इज 2/2 एग्जांपल। ये ही बात को जब हम लिखते हैं इसमें अलजेब्रिक फॉर्म में, तो हम इसको कहते हैं L2 नॉर्म, जिसमें तमाम कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके और एंड में 1/2 ऑफ द होल स्क्वायर करके सम किया और आखिर में 1/2 किया। इसका नाम L2 नॉर्म है। ओके, यही आइडिया जनरलाइज हो सकता है एलपी नॉर्म में। हम इसको एलपी नॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। एलपी नॉर्म, उसमें क्या करेंगे, हर कंपोनेंट का x1 x2 x3 x4 की पावर p लेंगे, उन्हें सम करेंगे और फिर उस सारे सम का 1/p कैलकुलेट करेंगे। ये उसी आइडिया को जनरलाइज्ड करके एलपी नॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। ठीक, दिस वाज L2 नॉर्म एंड दिस इज एलपी नॉर्म। इसको लिखने का तरीका, जिस तरह ये एलपी नॉर्म के हमने एक्स वेक्टर के साथ ये काम किया है, तो हम एस वेक्टर के साथ यहाँ पे पी लिख रहे हैं। जब अगर आप यही चीज L2 नॉर्म के लिए ये एक्सप्रेशन लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे आप 2 एक्स का L2 नॉर्म लिया है और उसमें यहाँ एक्स आई की पावर 2 लेंगे और उन्हें सम करेंगे ओवर ऑल द कंपोनेंट्स, और जो आंसर आएगा उसका 1/2 करेंगे। तो एलपी नॉर्म में व्हेन p is 2 it is L2 norm. Okay, and that is L2 norm is equivalent to the Euclidean distance or Euclidean norm which we already know of. इसी को अगर दूसरे एंड पे और नीचे लेके जाएं, तो L1 नॉर्म भी हो सकता है इसी डेफिनेशन में। L1 नॉर्म में क्या होगा, आपके तमाम यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 विद नो पावर, देयर इज नो स्क्वेयरिंग, आप सबको ऐड करें तमाम कंपोनेंट को बिकॉज ऑफ दिस, और फिर आप इसकी पावर 1/1 लेंगे, तो जस्ट एडिंग ऑल द कंपोनेंट्स विल गिव यू L1 नॉर्म। ठीक, ओके। अक्सर जगह हम ये जो यूक्लिडियन डिस्टेंस में आप आखिर में ये 1/2 अंडर रूट लिया है, हम इसको कई जगह यूज करने में ये स्क्वायर के सम को यूज करना चाहते हैं। जैसे आप जब अंडर रूट ले तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है, और आप स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वेरिएंस यूज करना चाहते हैं, तो आप इस कैलकुलेशन को स्क्वायर करेंगे, तो ये जो ऊपर ये पावर है जो अंडर रूट है, ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर ये हो जाएगा स्क्वायर्ड L2 नॉर्म। ये L में 2 जो है, दिस इज फॉर द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म के हर कंपोनेंट की पावर आपने 2 ली है। ठीक है, ये तो ये था। लेकिन अब इसके बाहर आप एक अलग लिख रहे हैं, स्क्वायर ऑफ L2 नॉर्म। वो एक और स्क्वायर का फैक्टर है, विच मीन्स आपने ये जो L2 नॉर्म था जिसमें 1/2 था, जब इसका स्क्वायर लिया तो ये पावर वाली चीज खत्म हो जाएगी और सिर्फ ये स्क्वायर का सम रह जाएगा, लाइक वेरिएंस। उसको आप, उसका नाम होगा स्क्वायर ऑफ L2 नॉर्म। और उसको लिखने के लिए, इस L2 नॉर्म को लिखने के लिए आप यहाँ पे 2 आपने पहले से डाला था, L2 नॉर्म के लिए ये 2 था। अगर आप इसका L2 नॉर्म का स्क्वायर लेते हैं तो एक इस जगह 2 लिखते हैं। लिखने का तरीका एक ऊपर एक 2 लिखेंगे, वो 2 स्क्वायर के लिए होगा, नॉर्म के स्क्वायर के लिए। ये 2 कैलकुलेशन ऑफ नॉर्म के लिए है। जैसे अगर मैं कहूं इस केस में
pth पावर ऑफ एलपी नॉर्म, ठीक है इसको को, तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे x विद p, ये स्क्वायर ऑफ ईच कंपोनेंट के लिए है, और मैं यहाँ p लिखूंगा उसकी फर्दर पावर लेने के लिए। ओके, ये नॉर्म और उसके स्क्वायर, L2 नॉर्म के स्क्वायर के मायने। इससे हमने ये देखा था कि ये जो LP नॉर्म या L2 नॉर्म है, इनको हम फिर आगे not only distance of a point from the origin के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम distance between the two vectors के लिए भी कर सकते हैं, which I did last time, you know, कि अगर ये एक वेक्टर सपोज v है और ये एक वेक्टर w है, यानी ये ओरिजिन की निस्बत इसके पॉइंट्स v1 v2 होंगे और इसके पॉइंट्स लेट से w1 w2 होंगे, और मे बी अगर इसके n कंपोनेंट्स ऑफ v1 v2 vn और w के कंपोनेंट्स w1 w2 wn, ये वेक्टर्स एक स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। अगर हम इन वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस देखना चाहें, अब दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस देखना चाहें, तो हम उसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर, वेक्टर लेवल का डिफरेंस, विच विल अमाउंट टू दिस, कि हर कंपोनेंट के डिफरेंस को लेके आप स्क्वायर करें। यानी अब हमने वो नॉर्म तो एक इंडिविजुअल वेक्टर का फ्रॉम दी ओरिजिन था, ये मैंने शायद ड्रॉ भी किया हो, ये मैंने ड्रॉ भी किया था, कि हम कह रहे हैं नॉर्म में तो अगर ये x1 x2 है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस को हम ले रहे थे, ठीक है, और उसको हमने x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर लिखा, अंडर रूट लिखा। अगर हम इसको स्क्वायर, ये L2 नॉर्म हो गया और फिर उसको स्क्वायर लें तो करें। अच्छा, इस तरह समटाइम्स आप दो वेक्टर्स के दरमियान, जो यहाँ दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस, यानी इस वेक्टर के इस पॉइंट और इस वेक्टर के इस पॉइंट के दरमियान डिफरेंस चाहिए, ये अपनी जगह ये एक्स वेक्टर जो होगा वो x1 x2 होगा, और ये अपनी जगह ये y जो होगा वो y1 y2 होगा, इसके पॉइंट्स। लेकिन अब हम चाहते हैं इस वेक्टर से इस वेक्टर का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस का मतलब है इसके इसके x यहाँ तक x1 है और यहाँ तक y1 है, तो इसका इनके इस वेक्टर का ये कंपोनेंट y1 माइनस x1 है, और इसका ये कंपोनेंट y2 माइनस x2 है, ठीक है। तो इनके स्क्वायर्स को का L2 नॉर्म निकालें, यानी इनको स्क्वायर्स लें, इसका स्क्वायर लें और अंडर रूट करें, तो फिर इन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो L2 नॉर्म का कॉन्सेप्ट है, वो एक इंडिविजुअल वेक्टर्स के अलावा जो हमने अभी सीखा, द डिफरेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, विच इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला, कि आपने उनके कंपोनेंट्स के डिफरेंसेस के स्क्वायर्स लिए और अंडर रूट लिया, एंड कॉल दैट के y वेक्टर माइनस x वेक्टर, ठीक। तो एक L2 नॉर्म ये है, मैंने सिखाया। तो स्क्वायर ऑफ L2 नॉर्म ये है, इस तरह लिखेंगे, नीचे ये 2 और ये ऊपर 2 स्क्वायर के लिए। जब L2 नॉर्म लिख रहे हैं तो खाली यहाँ 2 लिखेंगे, और इसी तरह L3 नॉर्म और LP नॉर्म होगा, ठीक। जनरलाइजेशन है, आप यूक्लिडियन डिस्टेंस के तहत इस बात को हमेशा से जानते थे। ओके, ऑलराइट। ओके, ये हमने ये कर लिया। ऑलराइट, अच्छा, ये जो अब जो हमारा ये मैट्रिक्स वाला था, ये नॉर्म से ताल्लुक रखता था, इसलिए हमने कहा कि मैट्रिक्स के केस में ये नॉर्म की आइडिया अगर एक्सटेंड करें टू मैट्रिक्स, अभी तक हम वेक्टर्स की बात कर रहे थे, सिंगल डायमेंशनल, यानी सिंगल पॉइंट इन मल्टीपल डायमेंशन एज ए वेक्टर, वन डायमेंशनल। अगर अब मैट्रिक्स हो, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है, और फिर अगर आपको नॉर्म निकालना है, तो उसका तरीका यह है कि आप मैट्रिक्स के तमाम कंपोनेंट्स को उसी तरह स्क्वायर करें, और
यानी वो तो एक वेक्टर के एक डायमेंशन में था, ये तमाम एलिमेंट्स को आप स्क्वायर करें और उनको अंडर रूट करें, तो ये इस मैट्रिक्स का इक्वल टू L2 नॉर्म चीज जो बनती है, जो ये वैल्यू निकलेगी आपका स्केलर वैल्यू निकलेगी, दिस इज द फ्रोबिनियस नॉर्म। मैट्रिक्स के लिए L2 नॉर्म की चीज कैलकुलेट करना इज फ्रोबिनस नॉर्म। और इस काम को अगर आपने एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना है तो इट इज वेरी सिंपल कि aij which means each element of matrix squared and summed for all ij rows and columns, और जो सम आए उसका 1/2 यानी कि अंडर रूट लीजिए, और दैट इज योर फ्रोबिनस नॉर्म ऑफ दैट मैट्रिक्स। और आप कहेंगे ये मैट्रिक्स डबल इस वर्टिकल लाइंस में, और ये एफ यहाँ पे वो आप L2 नॉर्म के बजाय फ्रोबियस का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और एफ लिख रहे हैं। ओके, अच्छा, तो मशीन लर्निंग में ये फ्रोबियस इस्तेमाल होता है। बेसिक मशीन लर्निंग की जो बात थी वो मैंने बहुत डिटेल से ये वाली डायग्राम को आपसे लास्ट टाइम बता दिया था कि आपका यहाँ फीचर का वेक्टर है और यहाँ ये वेट्स हैं लाइंस पर, और आप हर वेट को कैलकुलेट करने के लिए इस वेक्टर का और इन तमाम से जो वेट्स जा रहे हैं उस वेक्टर का आप आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और ये वाली एक न्यूरॉन या एक नोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और फिर इसी तरह दूसरे नोड के लिए फीचर वेक्टर अगेन विद ऑल दोज वेट्स, दैट मींस इट इज द सेकंड रो ऑफ द मैट्रिक्स। ये फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स थी, इस ये वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। वेक्टर टॉप रो के वेट वाले रो से ये वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक आंसर का आ गया, और फिर इसी तरह इसने दूसरे रो से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। और इस तरह ये हमारी मैट्रिक्स, ये मशीन लर्निंग में जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल से बताया था। If I can have the slide. Okay. Okay. हम इसमें ये कह रहे हैं कि जब ये वेक्टर होता है, ये मैं इसको दोबारा इससे आपके लिंक कर दें क्योंकि ये आपका ब्रेड एंड बटर है, यू शुड ऑलवेज नो इट। ये हमारा वेट की मैट्रिक्स होती है। इसके लिए मैंने अभी हमने 1 से n के लिए 1 से शुरू किया है। ये दिस कैन बी डिफरेंट, ये W1n, और इसी तरह चले W2 1 से शुरू होके W2n, और चलो n/n फिलहाल लेते हैं, डजेंट मैटर, m/n भी बाद में हो जाएगा। चलो n1 से लेकर WNN स्क्वायर, उसके हिसाब से फिर m/n में भी इसी तरह हो जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं। ये हमारा वेक्टर है। ये हमारा मशीन लर्निंग के लिए जो फीचर वेक्टर है वो आएगा, जो यहाँ इनपुट पे आ रहा है। दिस इज दिस, ये वेक्टर यहाँ पर ये है जो इनपुट पे आ रहा है। ये वेक्टर जब इस W से, ये W है, ये हमारा, इसको हम अक्सर XT का नाम देते हैं, जो इनपुट पे आ रहा होता है। ये वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल लिखते हैं तो XT कह देते हैं। ये XT और ये W, ये हमारा X इधर आ रहा है जो एक सैंपल है। एक सैंपल में ये वेक्टर है जो फीचर्स का वेक्टर है। ये मैंने जो आपको जैसे कल बताया था, इसके आगे जो नेक्स्ट रो है वो भी, उसमें भी इसी तरह बहुत सारे ये हैं। इधर भी है, यही थे ये आपके
ये नोड्स में इस वेक्टर के एलिमेंट्स हैं। तो मैंने जैसे बताया कि हर इस नोड पे जो नेक्स्ट लेयर का है, इधर से जो चीजें हैं ये इसके ऊपर यहाँ वेट्स होते हैं, W11, W12 और ये W1N, ओके। इससे आपके आउटपुट का जो लेट्स से अगर ये दरमियान की लेयर हो तो इसको आप H कह लेते हैं। अगर जब आउटपुट की लेयर होता है सपोज तो हम यहाँ O लिख लेते हैं इन नोड्स के लिए, O1 O2 O1 O2 और ON सपोज। यहाँ पे हम H दरमियान की हिडन लेयर के लिए H तो ये H1 H2 और HN। अच्छा, तो एक H1 के लिए ये एक H1 की कैलकुलेशन हो रही है जिसमें आप ये X इनपुट वेक्टर, ये चलो आप इसको I1 का कह लेते, इनपुट वेक्टर है I1 से लेकर IN, ठीक। ये आपका इनपुट वेक्टर था I1 से लेकर IN तक। इसके ऊपर वेट के ये जो वेट्स थे यही n वेट्स एक रो में, पहली रो में इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट हुई और वो सम यहाँ पर आ गया। सम इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाइंग I1 with W11 plus I2 with W12 and IN with W1N। ये रो, ये वाली रो और ये वेक्टर, जैसे हमारी वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है ये काम हुआ और ये आपका H1 आ गया इनको सम करके, ये आपका H1, ठीक। ये एक कॉलम और एक रो की जो मल्टीप्लिकेशन थी उसका ये रिजल्ट है। अब यही कॉलम फिर इस रो से मल्टीप्लाई होता था जब हम मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो दैट विल बी के सेम कॉलम, ठीक है। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए जो ये इस पर यही सारे जाएंगे। अब मैं डॉटेड में लिख देता हूँ, सारी उसी तरह के मल्टीप्लिकेशंस हैं जो पहले की हुई थी। ओनली डिफरेंस इज कि अब नाउ वेट की सेकंड रो है। अब ये पहली रो जो है वो W21 है, W21 और दूसरी W22 और ये W2N। तो अब यही उसी तरह तमाम वेट्स इस पर भी जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ किए हैं वो ये हैं W21 से लेकर W2N तक। अब सेम वेक्टर सेकेंड रो से ऑफ वेट्स से मल्टीप्लाई होके H2 कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और इस तरह ये कैलकुलेशन होगी, ठीक। और ये सारे H कैलकुलेट हो जाएंगे और फिर जैसे यहाँ इनपुट I था अब उसकी जगह इनपुट H बन जाएगी, H का वेक्टर बन जाएगा। और फिर इधर ये इसी तरह ऑल कनेक्शन के साथ W इस स्टेज के W होंगे, W मैट्रिक्स होगी इस स्टेज पर और इसी तरह फिर वो W और ये मल्टीप्लाई होके आउटपुट का ये O बन जाएगा नेक्स्ट साइकिल में यहाँ H आ गया इनपुट, यहाँ मे बी W डैश हो गया डिफरेंट और इसका आगे ओ के सारे आ गए, ओ के N केसेस आ गए, ओ के N केसेस आ गए, ठीक। H के N केसेस हैं, W के N/N केसेस हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन हुई और O का N वेक्टर बन गया जो फाइनल वेक्टर है। ये काम आप न्यूरल नेटवर्क्स में, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में जब डीप लर्निंग कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन जिनकी हम बातें कर रहे थे नमपाई में भी कर रहे थे, इधर भी हम इसका अलजेब्रा सीख रहे हैं, वो ये है। आई एम जस्ट रिलेटिंग कि आप ये चीजें सीख रहे हो तो इस जगह फिट है और ये कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो। ओके, चलें अब हम इसे दोबारा वी गो बैक टू आवर अलजेब्रा थिंग। अच्छा, तो ये हमने ये काम किया। अच्छा, अब जब हम ये काम कर रहे हैं जो अभी मैंने बताया, तो अब इसमें मसला क्या हो रहा है कि यहाँ पर तमाम लेयर्स पे, यहाँ तो 2 लेयर्स थी तो ये एक पूरा W का वेट्स का मैट्रिक्स था।
यहाँ पर एक और वेट्स का मैट्रिक्स था, और जब मल्टीपल लेयर्स के साथ आप ये काम करेंगे तो बहुत सारे वेट के मैट्रिसेस हर स्टेज पर होंगे। इसके इन इन इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस करने के अलावा एक आपकी नीड होती है रेगुलराइजेशन की, जिसमें आप चाहते हैं कि ये जो सारे वेट के मैट्रिसेस हैं तमाम लेयर्स में, इनकी वैल्यू की मिनिमाइजेशन हो जाए वेट्स की मैट्रिसेस की। ठीक, तो उसके लिए आपका ये जो फ्रोबिनस है ऑफ ए मैट्रिक्स, फ्रोबिनस नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ये काम आता है। यहाँ क्या आप कह रहे हैं कि आप ith स्टेज पे, जिसके बहुत सारे स्टेजेस हैं, हर स्टेज पे W है, ith स्टेज के W का फ्रोबिनस वाले मैट्रिक्स का फ्रोबिनस कैलकुलेट करें, जो हमने यहाँ सीखा है, और ऐसे तमाम वेट्स के फ्रोबिनसिस को, हर लेयर का ये वेट का फ्रोबिनस है, L लेयर्स के लिए इन सबको सम करें, इन तमाम फ्रोबिनसिस को, और इसको एक स्केलिंग फैक्टर लैम्डा से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। रेगुलराइजेशन के लिए ये स्केल फॉर रेगुलराइजेशन है। इसका जो मिनिमाइजेशन का काम है वो हमारे रिजल्ट्स को बेहतर करेगा। तो इस एक्सप्रेशन को आपने मिनिमाइज करना है। तो आपकी जैकोबियन एक रिजल्ट था, उसमें आपने ये रेगुलराइजेशन की चीज डालेंगे तो ये जैकोबियंस रेगुलराइज्ड बन जाएगा। हम ये जैकोबियन वगैरह की डिटेल बाद में देखेंगे, मगर हम इसके अंदर ये जो रेगुलराइजेशन का फैक्टर आता है उसमें ये चीज में आपका ये मैथ्स फ्रोबिनस का इस्तेमाल होता है। तो ये फ्रोबिनस रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। अच्छा, अब ये चीज आप, फिर आपको मैं कहूंगा, आप चाहें तो अपनी प्रेजेंट भी एफएससी की बुक्स देख लें खोल के, ये आपने की हुई हैं, ये चीजें की हुई हैं। ओनली थिंग इज कि आपको इस कॉन्टेक्स्ट में इसको रिकॉल करना और यूज करना, कि ये हम करते थे एंगल बिटवीन वेक्टर्स, कब वेक्टर्स नॉर्मल होंगे यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगी, कब वेक्टर्स अलाइंड होंगे, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है तो वो अलाइंड होते हैं, अगर वो वन होती है तो वो अलाइंड होते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वर्टिकल होते हैं, और ये सारी चीजें हमने ये सीखी हुई हैं। उन्हीं को अब यहाँ यूज करना है आपने। तो अगेन ये जो हम यहाँ बात कह रहे हैं वेक्टर्स और उनकी ये प्रोडक्ट और उनके दरमियान एंगल। जी जी जी। अच्छा, ओके, इसको ये एक्सप्रेशन, ऑल ऑफ यू आर फाइन विद दिस एक्सप्रेशन जो यहाँ है, यू कैन रिकॉल योर बेसिक थिंग्स टू अंडरस्टैंड इट, जो हमने अभी भी की हैं और पहले भी आप जानते हो। ओके, इसी तरह ये एक्सप्रेशन, ओके, they look like something huge but they are not, they are very simple concepts, but anyway उन कॉन्सेप्ट को समझना और इस मैथमेटिक वे में उसको एक्सप्रेस करना हमें, और इसको जब आप यूज कर रहे हो डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग, तो इफ दीज एक्सप्रेशंस कम अक्रॉस, उनके बारे में आपको फेमिलियर होना चाहिए और कोई उससे फ्राइटन नहीं होना चाहिए। ये अब आप देखोगे, आई विल जस्ट जस्ट राइट देम एंड यू विल फाइंड के ओ माय गॉड, ये तो दिस वाज अ जोक रियली। तो आप इसको देखते हैं, हम देखते हैं, अगर हम कोई चीज आपके कॉलेज अलजेब्रा से बियॉन्ड नहीं कर रहे होंगे, हम कहते ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है? कंपोनेंट्स, अगर n कंपोनेंट्स हैं तो हम कंपोनेंट्स को इस तरह एक्सप्रेस कर लेते हैं, A1 A2 और AN, n वेक्टर कंपोनेंट, एनी नंबर ऑफ नंबर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन जो हम यहाँ करेंगे इसमें एग्जाम्पल। और इसको चलो, इसको हम यही लिख देते हैं, यू कैन राइट इट
ये इसके एग्जाम्पल के लिए मैं 2 वैल्यूज का वेक्टर लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए, जनरल तो ये ओके मैं कह देता हूँ ओके। मैं इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ ताकि ये अलग नज़र आए, क्योंकि वो एक इसकी एक सिंपल सिचुएशन है जिससे आप फैमिलियर होंगे। तो A1 A2 अगर n डायमेंशन, हमने 2 डायमेंशन की जगह वही देखा था x1 x2 वाले, अगर इसके 2 कंपोनेंट हैं तो A1 A2 A3 A4 A5 AN जैसे हमने कहा, ये हम कह रहे हैं। हम अपने एग्जाम्पल में 2 कंपोनेंट वाले को देखेंगे, यहाँ जनरल लिखेंगे B भी इसी तरह B1 से लेकर और Bn तक कंपोनेंट, n कंपोनेंट्स का वेक्टर, ये बेसिक वेक्टर हैं जिनको आपने। अच्छा, इनके मैग्नीट्यूड्स लिखने हैं, क्या करोगे? मैग्नीट्यूड इन वेक्टर्स का जो होता है दैट इज नथिंग बट L2 नॉर्म। अभी हमने L2 नॉर्म बहुत सीखा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज L2 नॉर्म। ठीक, ये जो हम आम 2 डायमेंशनल एक सिंगल डायमेंशन में n कंपोनेंट वेक्टर को हम कहते हैं, इट्स नथिंग बट L2 नॉर्म। तो L2 नॉर्म हमने कहा था ऐसे लिखा करेंगे। मैग्नीट्यूड हम आमतौर पे पहले ये मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते थे, ये वही चीज है। L2 नॉर्म की शक्ल में इसको ऐसे लिखा है, यहाँ क्या है, अगर इसके बहुत आप पर्टिकुलर होंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, उसका मतलब होगा L2 नॉर्म। ठीक है, तो ये एक्चुअली L2 नॉर्म है, L2 नॉर्म ऑफ A। ये है इनकी टर्म में मैथमेटिक्स के इसमें हम पुराने टाइम से जानते थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो वो ये है। मैं इस तरह इसको लिखता ओके। और ये नथिंग इज व्हाट वाज मैग्नीट्यूड, हर कंपोनेंट को स्क्वायर करो, दैट वाज L2 नॉर्म, कि A1 को स्क्वायर करो प्लस A2 को स्क्वायर करो, और आप इसी तरह इन सारे कंपोनेंट्स AN को स्क्वायर करो और ऐड भी कर रहे हैं, आप स्क्वायर भी कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं। तो ये जो आंसर है इट्स ए स्केलर, अब ये वेक्टर नहीं है, इट्स, आप इसको ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं। ये जो सारा सम है दैट इज L2 नॉर्म ऑफ A एंड दैट इज A मैग्नीट्यूड। इसको अगर आपने लिखना है थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे, ये चीजें अब आपको रूटीन में आदत कर रहे होनी चाहिए इस्तेमाल के, तो आप कहेंगे कि इज नथिंग बट इसके हर कंपोनेंट, ith कंपोनेंट को आपने लिया, जहां I जो है उस कंपोनेंट को स्क्वायर किया, ith कंपोनेंट को, और इसमें I जो है इट वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये हमने यहाँ पर L2 नॉर्म लेते हैं तो आखिर में रूट भी लेते हैं इसका, ठीक है ओके। तो ये आपने ये इनके स्क्वायर किए, इससे जो सम का आंसर आया है उसका आपने अंडर ले लिया, अंडर। चलो मैं इस तरह अंडर ले लेता हूँ, ये आपने। फिर आपने कहा ओके, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इसी तरह सब कुछ वही, यू कैन डू इट, बी के साथ लिखेंगे ये मामला सारा, ओके यू कैन राइट। तो ये भी BI का स्क्वायर, ith element of B का square over all the elements from 1 to n and taking their under root। ये magnitudes of vectors और L2 norms of vectors, L2 norm of B, ये L2 norm of A था, L2 norm of B, ठीक ओके। अच्छा, अब उसके अंदर एक टर्म हमारे इस्तेमाल की हुई थी A डॉट बी। अच्छा, A डॉट बी को जब हमें परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल और ये चीजें देखना होती हैं तो हम अगरचे A डॉट बी वेक्टर्स के जरिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। A डॉट बी अगर हम कहते हैं A डॉट बी, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका हमारा डॉट प्रोडक्ट, हमें मालूम है कि A1 B1 रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं और ये AN BN तक जाते हैं, और इनको आप
सम करते हो सारों को और दैट गिव्स यू द आंसर सम करके, ठीक है। और इसको हम इस तरह लिखते थे, पहले भी हमने बहुत दफ़ा लिखा है जब क्यूडा वगैरह कर रहे थे, तो कि आप इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें और उन्हें सम करें फॉर आई फ्रॉम 1 to n। तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गई, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आ गई हमारी। हमें मालूम है कि वेक्टर्स के मामले को जब हम एंगल के शक्ल में लिखते, अभी मैंने जो वेक्टर्स बनाए थे, दो वेक्टर्स, जब हम डिस्टेंस निकाल रहे थे, तो अगर ये एक वेक्टर हो, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और मैंने अभी आपको बताया था कि वो जब हम डिस्टेंस निकाले थे, x1 x2 और ये y1 y2, और हम इनके वो डिफरेंस और डिस्टेंस इसका निकालना चाहें तो हम ऐसे निकाल, अभी हम देखा अगर यही दो वेक्टर, फर्स्ट को ये a है, ये b है, इनको आप मैग्नीट्यूड और एंगल की शक्ल में इन वेक्टर्स का ये रिजल्ट निकालना चाहें, तो आपका ए का एंगल ये है θ1, बी का एंगल ये θ कह लो, दूसरे का एंगल है θ बी, तो एक्चुअल एंगल ये होता है थीटा, जो इनका डिफरेंस है, ये वेक्टर के डिफरेंस को हम देख रहे हैं, ए और बी का डिफरेंस जो ये वेक्टर होता है, तो ये थीटा वो है इसमें हमारा, यहाँ पर इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो ये थीटा है, ठीक है। एक्चुअली इट इज डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल, थीटा, थीटा इज द एंगल। अगर हमें ये एंगल पता करना हो कि दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान एंगल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका जो नॉर्मल तरीका है कि ये दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स की ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड्स, अगर इफ यू मल्टीप्लाई देम विद द कॉस ऑफ दिस थीटा, एंगल बिटवीन देम, that is equal to a dot b, ठीक। तो हमारा फिर a dot b is equal to this in terms of this theta expression, a dot b in terms of वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ये चीज है, और एंगल की शक्ल में मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वन, एंड कॉस ऑफ थीटा। तो इस केस में एंगल मालूम करने के लिए हम कहेंगे कॉस। ओके, ये थीटा मालूम करने का है। अच्छा, अब हमें देखना होता है अक्सर कि यार ये वेक्टर ऑर्थोगोनैलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, क्या ये वेक्टर ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ये अक्सर देखना पड़ता है। तो इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन सर जी जी सर ये लास्ट वाला स्टेप को दोबारा अगर आप बता दें। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in a polar coordinate method is expressed, ये दो वेक्टर्स हैं इनके डॉट प्रोडक्ट है, is expressed as magnitude of first vector, मैं इसको okay, magnitude of first vector into magnitude of second vector multiplied by cos of the theta, which is theta is the angle between them। ये एक वेक्टर है a, ये एक वेक्टर है b। अगर आप इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लें तो वो ये है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ये दो वेक्टर्स की a डॉट b
इज के A1 B1 A2 B2 AN BN, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करने का ये तरीका है जिसका ये फॉर्मूला है। सेम डॉट प्रोडक्ट अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखें जिसमें एंगल और मैग्नीट्यूड बेस्ड होता है, तो ये एंगल है। व्हाट इज द एंगल? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा। अगर ये थीटा हो तो डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये हमारा स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था इसमें से मैंने खाली कॉस थीटा को इधर रखा और ये जो दो थे उनको मैं उधर ले गया डिनोमिनेटर में। मैंने इसलिए अलहदा किया कि मैंने कहा जब भी कभी हमें एंगल बिटवीन द टू एंगल वेक्टर्स निकालना होता है तो हमें ये कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं और उसमें से थीटा फाइंड कर लेते हैं और हम कह देते हैं दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ए एंड बी वेक्टर के दरमियान अगर कोई कहे एंगल क्या है तो मैं इस चीज को कंप्यूट करूंगा और मुझे एंगल पता चलेगा। इनको कंप्यूट करने के लिए आप अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का जो ऊपर मैंने सारा किया वो इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे मुझे इसको कॉस थीटा कंप्यूट करने के लिए एक तो मुझे चाहिए ए डॉट बी, आप फौरन यहां से ए डॉट बी लेंगे। इनके वेक्टर्स के कंपोनेंट्स आपके पास हैं, आपने ए डॉट बी निकाल लिया ये इस फॉर्मूले से, वो यहाँ ये ए डॉट बी निकल आया। फिर आप कहोगे मुझे ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, ये रहा। आप सारे वही जो यूक्लिडियन वैल्यू निकालते हैं ए की या मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये आप सारे कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, रूट करें, ये बी की जरूरत पड़ी, फिर आप यहां चले जाएंगे, बी आ गया। अब कॉस थीटा निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला था जो वहां था और हम कह रहे थे कि हाउ वी डोंट नो अबाउट इट, इट वाज दिस। ये इसके मैंने उसके बेसिक बातें बताई हैं, यानी उस फार्मूले में जो अभी वहां लिखा हुआ है व्हेन वी गो बैक यू कैन सी दैट, उसमें सिर्फ ये है कि हमने ये जो ए डॉट बी है इसकी जगह ये लिखा हुआ है, ये चीज उस फार्मूले में ये चीज यहां लिखी हुई है और फिर ए की जगह ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिख दिया हमने वहां, और बी की जगह बी मैग्नीट्यूड की जगह ये लिख दिया है। अगर इन चीजों को हम यहाँ लिखें तो दैट इज दैट फॉर्मूला। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारा कुछ काम क्यों हो रहा है? ये काम इसलिए हो रहा है इट हेल्प्स अस टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो कि जैसे ये ए और बी वेक्टर थे जिनके बारे में हमने काम किया, इनके दरमियान एंगल क्या है। इसका एंगल फाइंड करने के लिए हम ये वैल्यूज डालेंगे, ये सारे स्केलर वैल्यूज हैं, तो आपको एक कॉस थीटा मिलेगा, कॉस थीटा से थीटा निकल आता है, थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ दैट, तो आप थीटा निकाल लेंगे, आपको एंगल बिटवीन एनी एंगल्स पता चल जाता है। अब इसके स्पेशल केसेस जो आपके खास यूज के होते हैं वो ये दो हैं, हमारे उनमें से बल्कि एक पे ज्यादा जोर होगा कि अगर आपका कॉस थीटा का इधर का आंसर आपका आता है 1, ठीक है, इसका मतलब होगा थीटा इज 0। इसका मतलब क्या होगा, ए और बी वेक्टर एक ही सिमत में है, मे बी इनकी लोकेशन एक ए वेक्टर यहां है, मे बी बी वेक्टर ये है सपोज, मगर इनकी डायरेक्शन बिल्कुल एक है। इनके दरमियान एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स अगर आप इसको ड्रा करेंगे तो एंगल इज बिटवीन देम इज 0। तो cos ऑफ 0 इज 1, ठीक है। तो ये अगर cos ऑफ 0 इज 1, अगर आपका आंसर 1 आता है तो एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा विल बी 0, okay? If cos theta is 1, theta is 0. They are parallel. These are the parallel vectors. दूसरे केस में cos theta आपका अगर आता है कैलकुलेशन में 0, तो इसका मतलब होता है कि थीटा इज 90, और अब ये दो वेक्टर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे हैव टू बी, अगर ये ए है द अदर वन हैज टू बी लाइक दिस बी, ये परपेंडिकुलर, इनका ये एंगल इनके दरमियान जो 90 डिग्री है इसलिए cos ऑफ 90 इज 0। तो अगर ये एक्सप्रेशन हमारा ये कैलकुलेशन हमें 0 दे तो इसका मतलब है ए और बी आर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अमूमन इसको ऐसे लिखा जाता है, ए इज
ऑर्थोगोनल टू बी एज ए वेक्टर। ये हमारे इंटरेस्ट का ज्यादा कॉमनली जरूरत पड़ेगी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पर आगे की चीजें काफी चलेंगी। तो ओके, नाउ वी नो दी ऑर्थोगोनल वेक्टर। ओके, और उसकी तमाम डिटेल। ओके, ये हमने वो बताया था, ये एक्स वाई कॉस थीटा, और अगर ये ए बी हैं और ये दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान ये एंगल है, तो ये देखिए कॉस थीटा इज दिस। मैंने अभी साहब को इसकी डिटेल बता दी। इनमें से हर एक चीज क्या है ये हमने अभी देखी है, ये और ये। ठीक, वी अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन, इट्स वेरी ट्रिवियल, इट इज फ्रॉम आवर फिजिक्स कोर्स 1 और समथिंग लाइक दैट। ओके, ऑलराइट जी, ओके। अच्छा, अब वो ऑर्थोगोनैलिटी वगैरह को यूज करना है। लेट से अब ये चीजें हमने देखी, अब दोबारा देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स सिर्फ डायगोनल पे होते हैं और दूसरी जगह नहीं होते, और बाकी जीरोज हैं, और डायगोनल पे सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं। और उसी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल पर नॉन जीरो नहीं बल्कि ऑल वंस होते हैं, ये हमने पहले देखा। इसी तरह कोवेरियंस मैट्रिक्स, वो एक्सप्रेशन हमारा नॉर्मल ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिस तरह हम जब वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो उस वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम वेरिएबल लेते हैं माइनस मीन लेते हैं और उनके स्क्वायर्स करते हैं। जैसे अभी हमने स्क्वायर डिस्टेंस वाली चीज निकाली थी, स्क्वायर्स लेते हैं और उसको अंडर रूट करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। ठीक है, और अगर वेरिएंस लेना हो तो हम अंडर रूट नहीं करते और वो सारे सम ऑफ द स्क्वायर्स कर लेते हैं। मगर सम ऑफ द स्क्वायर जिसमें डिस्टेंस फ्रॉम द मीन होता है, यानी मीन में से हर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, उनको स्क्वायर किया, दैट्स वेरिएंस। सम कर उनको स्क्वायर किया और सम किया तो वेरिएंस होता है। वही वेरिएंस वाली बात जब दो मुख्तलिफ चीजों में एक्स और वाई में होती है तो अब इसको कोवेरियंस कहते हैं, नॉर्मल वेरिएंस और कोवेरियंस। ओके, लेट्स लेट मी से, अभी हम कोवेरियंस को बहुत रिग्रेस ना भी करें तो हम थोड़ा सा खाली बात कर लेते हैं उसकी, वेरिएंस एंड कोवेरियंस। ओके, नॉर्मली जब आपके डाटा होते हैं एक्स वगैरह होते हैं, एक्स कोई आपका वेरिएबल है, उसकी तमाम वैल्यूज आ रही होती हैं और उसका आप मीन निकालना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप उन सारों को सम करते हैं और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ केसेस करते हैं, तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन निकाल लेते हैं, मीन समिंग ऑफ द थिंग एंड डिवाइडिंग बाय दैट। अच्छा, जब आपने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, ठीक है, तो ये मीन को अगर हम कहें, चलो मैं म्यू म्यू एक्स कर लेता हूँ, मीन मीन को इस तरह लिखते हैं म्यू एक्स। ठीक है, और ये इसकी वैल्यूज हैं, एक्स जो आपका वेक्टर था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते थे कि हर वैल्यू का डिस्टेंस फ्रॉम मीन देखते थे, हर वैल्यू का डिस्टेंस फ्रॉम मीन लेते थे, उस डिस्टेंस को स्क्वायर करते थे और ये तमाम सम करते थे तमाम वैल्यूज पे, यानी एक्स के तमाम वैल्यूज, ये एक्स आई हैं, एक्स आई और आई फ्रॉम 1 to n जितना भी है इनको कर लेते थे। समझ गए, मीन से इंडिविजुअल वैल्यूज का जो डिस्टेंस है उसको लेके स्क्वायर करना, उन्हें सम करना और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में अपन रूट निकाल लेते थे। और वेरिएंस जब हम कहते थे तो इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करते थे, तो उसमें खाली ये स्क्वायर वाला पार्ट आ जाता था। ठीक, आपका ये एक्स आई माइनस म्यू एक्स, इसके स्क्वायर वाला पार्ट आ जाता था। ठीक है, ये सम वाला,
ये हमारी थी, ये हमारे नॉर्मल स्टेटिस्टिक्स में हम ये करते रहे हैं। वेरिएबल है, उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू या म्यू एक्स है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाउ व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन फॉर दैट थिंग। और उनका वो इस तरह की कोई आप बात समझ लें कि अगर ये आपके डाटा हैं और ये आपकी एस्टिमेटेड लाइन है जो आपने बनाई है, तो इनका स्प्रेड जो होता है वो इससे स्टैंडर्ड डेविएशन शो होता है। और कई दफ़ा हम जब इसको बेस्ट लाइन फिट कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन पॉइंट्स का डिस्टेंस के स्क्वायर को अगर हम कैलकुलेट करें तो कौन सी लाइन ये बेस्ट फिट करेगी इसको। यानी अगर ये लाइन ये वाली आपने चूज की तो हो सकता है इन पॉइंट्स के डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का सम की वैल्यू ज्यादा हो। अगर ये लाइन फिट की तो ये सम ऑफ द स्क्वायर्स इनकी वैल्यू, तो जो ये इसके स्प्रेड को शो करता है कि किस लाइन से उसका स्प्रेड कम करीब है मीन स्क्वायर्ड वैल्यू और किसकी नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वहां हम काम आते हैं हमारे। ठीक है, यही चीज अगर एक वेरिएबल के बजाय दो वेरिएबल की हो तो उसमें फिर इसमें तो एक ही मीन था, एक वेरिएबल था, उसमें दो मीन हो जाएंगे। एक्स का म्यू एक्स होगा, वाई का म्यू वाई होगा। अब को वेरियंस, ये वेरियंस ऑफ सिर्फ एक वेरिएबल था, वेरियंस ऑफ एक्स होगा तो ये, वेरियंस ऑफ वाई होगा तो ये। लेकिन अगर आप को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई कहें, को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई कहें, तो फिर ये वाले एक्सप्रेशन बजाय एक का स्क्वायर होने के एक एक्स के साथ मीन का फैक्टर और एक वाई के साथ उसके मीन का फैक्टर म्यू वाई, इनकी प्रोडक्ट बजाय एक ही का स्क्वायर लेने के हर एक का अपना अपने मीन से लेकर इनको मल्टीप्लाई करते हैं और वो इनके आपस में दोनों वेरिएबल की रिलेशनशिप को शो करता है जो हम वहां शो कर रहे थे। फिलहाल हम कोवेरियंस को इस हद तक जान जाएं तो काफी है, जब आगे इसकी मैट्रिसेस आएंगी तो फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसको सेव कर लूं। ओके, ठीक हो गया। चले, ये हम वहां पे एक्चुअल वेरिएंस फिर कोवेरियंस, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई दो चीजें हैं। इट इज लाइक द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल्स, अभी हमने एक का निकाला था, विच मेक्स दिस यू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स और एक्स माइनस म्यू वाई। इनकी प्रोडक्ट का एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकालते हैं, जैसे सम ऑफ द स्क्वायर्स का एवरेज निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। यहाँ पर x माइनस म्यू एक्स के स्क्वायर्स का एवरेज निकालते हैं। अब यहाँ x माइनस म्यू एक्स, वाई माइनस म्यू वाई, इनकी प्रोडक्ट का एवरेज निकालते हैं, जिसका अगर आप वैल्यूज वाई देखें तो कोवेरियंस में x की वैल्यू विद x के एवरेज से, y की वैल्यू विद y के एवरेज से, इन सबको सम करेंगे, तमाम वैल्यूज पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सम कर रहे हैं ऑन n वैल्यूज और फिर उसको n से डिवाइड कर रहे हैं। तो वो एक वन वैल्यू कम के लिए n-1, लेट्स से इफ देयर n वैल्यूज, हम n से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज निकलेगा। उसको हम ये लिख रहे होते हैं इस तरह कोवेरियंस के केस में। ये कैलकुलेट करें तो हम कहें इस डाटा का कोवेरियंस ये है। अगर जैसे अभी वो ऑर्थोगोनैलिटी में था, जब cos थीटा वाज 0 तो वो ऑर्थोगोनल थे, इसी तरह कोवेरियंस ऑफ दो में अगर इनका आंसर 0 हो, यहाँ पे आंसर 0 है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब आप इसकी निकालेंगे इन दो की एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स और वाई, तो वो सिंपली पहले की एक्सपेक्टेड वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरे के एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर होगी जब ये कोवेरियंस 0 होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, और जब आकर ये वैल्यू 0 हो गई, हर वेक्टर 0 है, तो उसके लिए फिर ये इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो कोवेरियंस के केस में ये होल्ड ट्रू है। ये बेशक उसकी मैट्रिक्स और एक्सप्रेशन है, अभी हम उसमें नहीं जाते, वो चीजें हम जब टाइम के साथ करेंगे। ओके, हमने सिर्फ वेरिएंस और कोवेरियंस देख लिया। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि हम डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, व्हाट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ओके,
ये पढ़ लेते हैं, फिर इसको वहां ड्रॉ करके देख लेंगे, ठीक है। बेसिकली स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल वी जब हम कहते हैं, विल यूज इट डिकम्पोजिशन में, और एफिशिएंसी ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स काफी काम आती है, हम इसको देखेंगे, इसके बहुत फायदे हैं। पहले के डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अगर आपका एक वेक्टर v है और उसको आप एक स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स में लिखें, वेक्टर v के कंपोनेंट्स को डायगोनल पर लिखें इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स शक्ल में, तो दैट इज द डायगोनल ऑफ v, ठीक है। तो अगर इस तरह हम v को डायगोनल v मैट्रिक्स की शक्ल में लिखें और x एक और x एक वेक्टर है जिसको इस डायगोनल मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करें, विच मींस कि डायगोनल ऑफ v को x से मल्टीप्लाई करें, तो इट कम्स डाउन टू द एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर v एंड x, यानी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ v को वेक्टर x से मल्टीप्लाई करना ऐसा ही है जैसे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर v और x है। ये यहां पर हम कह रहे हैं, ठीक है। इस बात को मैं फिर दोबारा वहां ड्रॉ करके हम देखें तो इट इज ट्रिवियल। चलो इसकी दूसरी बात ये है, ये भी देख लेते हैं। इसके बहुत से फायदे हैं डायगोनल मैट्रिक्स के। एक फायदा ये है कि इसका जो आप जब इनवर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का निकालना होगा, तो इट इज वेरी ट्रिवियल कि आप, क्योंकि डायगोनल की शक्ल में कंपोनेंट्स लिख रहे हुए हैं और मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्शन करने का मतलब है कि उसके डायगोनल पर जो अभी लिखे हुए होंगे v1 v2 vn लिखे होंगे, अगर डायगोनल पर v की जगह 1/v, v2 की जगह 1/, यानी उनको रेसिप्रोकल की शक्ल में लिख दें डायगोनल पर, तो ये आपको इस डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स को इन्वर्स करना इज वेरी इजी, कि आप उसके डायगोनल के एलिमेंट्स को रेसिप्रोकल करके लिख दें, ठीक। तो ये उसको हाँ इसमें है। अच्छा, इसको, ये बात हमने कह ली, इसको अब डायग्रामेटिकली बना लेते हैं और देख लेते हैं। कोई इसमें भी देयर इज नॉट लॉट ऑफ थिंग, ओके। हमने सिर्फ ये कहा है कि अगर एक वेक्टर v है और एक और वेक्टर x है, पहली बात हमने कहा कि देखो v वेक्टर का मतलब क्या है, v वेक्टर का मतलब है वेक्टर v है, इसके कंपोनेंट्स है v1 v2 से vn, एक जनरल v वेक्टर इस तरह का ही होता है, ठीक। एक x वेक्टर है, x वेक्टर वो क्या है, वो भी ऐसी x1 x2 x2 xn, यही है दोनों, दो वेक्टर। अच्छा, हम कह रहे हैं पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ v, डायगोनल हमने वहां कहा, डायगोनल ऑफ v का मतलब है ए मैट्रिक्स, डायगोनल v का मायने कि इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर v के एलिमेंट्स हो। तो हमें क्या करेंगे, हम डायगोनल v क्या होगा, एक n बाय n मैट्रिक्स होगी, इधर से भी n, क्योंकि ये n था वेक्टर, इधर से भी n बाय n वेक्टर्स होगी। इसके डायगोनल पर यहाँ v1 v2 और vn, और बाकी सब जीरो, ये सब जीरो हैं, 0 0 0 0, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। ये बने दैसे डायगोनल भी सिंपल। अच्छा, अब फिर हमने कहा अगर हम मल्टीप्लाई करें, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करें डायगोनल v की, डायगोनल v को, ये डायगोनल v को हम मल्टीप्लाई अगर करें इस मैट्रिक्स को वेक्टर x से, वो हॉरिजॉन्टल लिखते हैं तो उसको xt लिख देते हैं, मगर हम वेक्टर x से, चलो xt कर लें, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होगा, ये x हमारा, ये है x, ये x है, ये x,
इसको वर्टिकली बस मैंने लिखा है यहाँ। तो अगर डायगोनल ऑफ V को मल्टीप्लाई करें वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो क्या आंसर आएगा बताएं। यहाँ इसका x1 और x2 और xn है, ये xn है, xn, ठीक। तो ये x1 V1 से मल्टीप्लाई होगा, x1 V1 प्लस x2 0 प्लस x3 0 प्लस x4 0। तो इस कॉलम की इस रो से डॉट प्रोडक्ट ली जाएगी, मगर उसका आंसर क्या बनेगा जब हम ये करेंगे। मैं इधर लिख लेता हूं इसका आंसर। एक वेक्टर आएगा x1 v1, यहां पर x1 v1, ठीक है। अच्छा, फिर यही चीज यहाँ x2 सेकंड पोजीशन में v2 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारी टर्म जीरो होंगी। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा x2 v2, x2 v2, ओके। और इसी तरह xn vn। ये मैंने ये काम किया है, ये मैंने डायगोनल मैट्रिक्स V और X को आपस में मल्टीप्लाई किया एज ए वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नॉट द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट उस प्रोसेस में हर रो और कॉलम की आती है, मगर मैंने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की, ये वेक्टर बन गया, उसका आंसर ये होगा। एंड दैट इज इक्वल टू, ये जो बना है, ये मैं इसको अलग करता हूँ, इसको बराबर हम नहीं कह रहे, इस चीज के बराबर है ये मेरा आंसर, ये रहा। और ये इज नथिंग बट इनकी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं इसको कहूँ कि V का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई के लिए हम ये साइन इस मैथ्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, इनटू x। तो V और x का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ V मैट्रिक्स इनटू x वेक्टर, ये ओके। ये वहां बात कही है हमने। और फिर हमने ये कहा कि डायगोनल की अच्छी बात यह है कि इसका जब कभी भी इन्वर्स लेना होता है तो आसान होता है जब जरूरत पड़ेगी हमें। मसलन अगर हमें डायगोनल V मैट्रिक्स का इन्वर्स करना हो, मुझे इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना हो ये, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। मैंने इसकी जो डायगोनल V की जो मैट्रिक्स है, इसमें इसके ये कंपोनेंट जो है इनको रेसिप्रोकल लिख देना, 1/v1 1/v2, और इसी तरह चलता जाऊं डायगोनल पे 1/vn, और बाकी एज इट इज जीरो सारे। तो इसका इनवर्स फाइंड करना इज वेरी सिंपल। इसकी मैनिपुलेशन विद वेक्टर करना भी आसान, और इसको इनवर्स फाइंड करना भी आसान, इसलिए हम डायगोनल V को बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये हम कर लेते हैं। ओके, वी गो बैक। ये दो बातें हमने वहां पे थोड़ी डिटेल में दिखाई। डायगोनल ऑफ V को x से करते हैं तो इट इज इक्वल टू V एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई विद x, एंड इट इज ए वेक्टर, इट्स ए वेक्टर, ठीक। और इनवर्स निकालना पड़ जाए तो हम डायगोनल पर 1/v1 लिख देते हैं। ओके, अच्छा, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हमने पीछे भी बात की कि सारे डायगोनल पर जीरो और उनके मिरर इमेज दोनों तरफ है, इधर 184 दिस। ये तो मैट्रिक्स है। प्रैक्टिकली ऐसी मैट्रिक्स कब बनती है? जब आपके आई जे और जे आई का रिजल्ट ए आई जे और ए जे आई एक हो। और वो कब एक हो सकते हैं? फर्स्ट करो डिस्टेंस मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, इधर सारे सोर्स डिस्टेंस के सोर्स पॉइंट है, इधर सारे डेस्टिनेशन पॉइंट है ना, ऑल द प्लेसेस जहां से चलना है, ऑल द प्लेसेस जहां जाना है। चलो ए से ए का फासला 0, ठीक है। ए से बी का फासला 184, मगर अगर बी से ए का फासला वो भी 184। तो जो चीज बिहेवियर में सिमेट्रिकल होती है ए टू बी और बी टू ए, यानी जिसमें ये फीचर पाया जाता है, उसकी मैट्रिक्स अगर आप बनाएंगे, ये फ्रॉम ऑल द लिस्ट ऑफ सिटीज एंड लिस्ट ऑफ सिटीज, अब आप इनके फ्रॉम दिस टू दिस करें या फ्रॉम दिस टू दिस करें, आंसर एक जैसे होंगे और आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी ए आई जे। इसका फायदा क्या है? हमें एक ट्रांसपोज हमने पहले सीखा हुआ था मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज क्या था? अगर आप रो कॉलम्स को रोज की शक्ल में लिख दें तो ट्रांसपोज होता है।
अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर दोनों मैट्रिसेस एक ही होंगे। अगर आप इसका ट्रांसपोज लें, आप ये वाली रो को, कॉलम को इधर रो लिख देंगे, इस कॉलम को इधर रो लिख देंगे, तो आप देखें कि ये इधर कॉलम और इधर रो दे आर सेम। तो अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स अनचेंज रहेगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका बिहेवियर ये होता है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसका ट्रांसपोज और वो एक ही है। तो एक तो आसानी ये हो गई कि ट्रांसपोज निकालना बहुत सिंपल है, और भी इसके बहुत से फायदे। अभी जो हमने कोवेरियंस पीछे पर समझा था, कोवेरियंस की जब भी मैट्रिक्स बनती है, ये साइन कोवेरियंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हमेशा सिमेट्रिक होती है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक एप्लीकेशन कोवेरियंस मैट्रिसेस में आएगी, ये उसकी एग्जांपल है, मगर हमने यहां इसको समझ लिया है। अच्छा, ओके। अब हमें ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एनीबॉडी? अभी हमने जो L2 नॉर्म निकाले हैं वेक्टर्स के, अगर ऐसे वेक्टर्स जिनका L2 नॉर्म 1 हो, दे आर द यूनिट वेक्टर। इनफैक्ट ये वो वेक्टर्स हैं जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, कि उनका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो हेल्प करती है हमें बताने के लिए कि ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। और उसका फिर इस्तेमाल जो अभी हमने चीज सीखी थी वो ये है कि एक चीज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, जिसका हमने अभी सीखा सारी डिटेल, कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो वेक्टर ऑर्थोगोनल होते हैं। तो हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर समझ लिए क्या होते हैं। अब ये जो यूनिट वेक्टर की जरूरत कहां पड़ी थी? अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में हर एक का मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कहते हैं। यानी ये ऑर्थोगोनल है, यानी इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनकी प्रोडक्ट 0 है। मगर इनमें अगर हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें और वो 1 हो, तो यानी कि वो यूनिट वेक्टर भी हो। ऐसे वेक्टर जो ऑर्थोगोनल भी हो और हर वेक्टर यूनिट वेक्टर भी हो, तो उनको कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। ठीक। और यू नो के वैल्यूज से भी आप ट्राई कर सकते हो। मसलन अगर मैं कहूं कि कोई वैल्यूज आपको दिखाएं, चलो इधर चले जाते हैं, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल और ये वेक्टर ओके ओके ऑलराइट। ओके, अगर एक वेक्टर है, इसको हम अक्सर यूनिट वेक्टर के लिए यू का वर्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। एन एग्जाम्पल कुड बी कि अगर क्या लें, 1/√2 1/2 मे बी 1/2, ये एक वेक्टर है, 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। ओके, अगर ये वेक्टर है तो इसका आप निकालें L2 नॉर्म, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालें। क्या होगा? इसका स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, ठीक, ये प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ये देखें, ये इस 1/2 1/4 1/4 ओके 1। सो देयर कैन बी वेक्टर्स जो मल्टीपल डायमेंशंस हो उसकी, बट उनका मैग्नीट्यूड 1 हो। ये वेक्टर्स हेल्प करते हैं डायमेंशन को तय करने के लिए। ठीक, तो अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, ये दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, ये हमने पीछे सीखा। अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इनकी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी हमने देखा कि 0 है, तो वही एंगल cos थीटा विल बी 0 और एंगल विल बी 90।
ये 0 है, तो एंगल इनका 90 होगा। अगर ये दोनों वेक्टर इस तरह के यूनिट वेक्टर हों, यानी इनकी लेंथ 1 हो, तो एक्चुअली ये आपके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना, आई कोऑर्डिनेट, जी कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जो आपस में ऑर्थोगोनल भी होते हैं, तो ये 1 भी हो तो फिर ऑर्थोनॉर्मल कहलाएंगे। यानी अब ए का यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर, ये एंगल वाइज तो 90 डिग्री पे है, तो ये, लेकिन 1 भी है तो ये ऑर्थोनॉर्मल होंगे। ठीक है, ओके। ओके, अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब वही बात कि हमें कोई भी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से क्या मुराद, ये हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कर लिए। अब मैट्रिक्स में देखें, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो उसके वेक्टर्स होते हैं, वो रोज, हर रो जो है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, यानी रो के जो वेक्टर्स हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह रहे हो। ठीक है, अब अगर और उनके अंदर वो यूनिट वेक्टर भी हो तो वो आपकी ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स बन जाएगी। ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स कि उसके वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से नॉर्मल हैं और उनकी यूनिट लेंथ है, तो ये, तो फिर ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी रोज म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल हो, यानी वो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल भी हैं और यूनिट लेंथ भी रखते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स के केस में फिर आपका ये बिहेवियर होगा कि उनका ए टी ए और ए टी, वो ऐसी मैट्रिसेस होंगी कि उनकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद इट्स ट्रांसपोज विल बी आई। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस प्रॉपर्टी की मैट्रिक्स अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका अपने ट्रांसपोज से प्रोडक्ट आई आता है। अच्छा, इसमें एक और जबरदस्त बात आ गई, हमें मालूम था एक और चीज है जिसमें उसका मल्टीप्लिकेशन, एक मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी आई आता था, वो हमने जब इनवर्स सीखा था कि इनवर्स में अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आई आता है। तो ये बिहेवियर और वो बिहेवियर का मतलब हुआ कि ये ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स में उसका इनवर्स निकालना हो तो आप खाली उसको ट्रांसपोज कर लें तो इनवर्स निकल आएगा। तो फाइंडिंग द इनवर्स बिकम्स वेरी चीप, अदरवाइज यू नो इट, आपने इनवर्सेस कई दफा कैलकुलेट किए हैं। तो अगर आपकी मैट्रिक्स डेटा की ऑर्थोनॉर्मल बिहेवियर की हो तो आपको इनवर्स निकालना बेतहाशा आसान हो जाता है, आप खाली उसको ट्रांसपोज कर दो। नॉर्मली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज नॉट द इनवर्स। ठीक है, इनवर्स की कैलकुलेशन में जहां आपने 50 काम किए थे उसमें एक काम किया था, जब एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहे थे तो को फैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज भी किया था एक, बट इट इज नॉट इक्वल। इस केस में इट इज इक्वल, तो आपका बड़ा एफिशिएंट कैलकुलेशंस अगर आप डाटा उस फॉर्मेट में लें तो हो जाती हैं। ये सब उस काम के लिए हो रहा है। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके हमारा मे बी इट इज अवर कल्मिनेशन पॉइंट, हम इसके बाकी स्लाइड चीजों के आपको दे देंगे, वो आपने वो ये था कि मैट्रिक्स को डीकम्पोज करना, कि डीकम्पोज करने के लिए हमें क्या काम आएंगे। अगर मैट्रिक्स को एक जनरल बिहेवियर के तौर पे देखें, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ना देखें, तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसकी डिकम्पोजिशन से पता चल जाती है। ये ऐसी एक मिसाल दी, अगर इंटीजर 12 है और उसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर्स में 5 नहीं है, या ये कि अगर मल्टीपल ऑफ 12 जो है वो हमेशा 3 से डिवाइड होंगे, और इस तरह की प्रॉपर्टीज। इट डजेंट मैटर कि ये नंबर्स हम बाइनरी में लिखें या डेसिमल में लिखें या ऑक्टल में लिखें, ये प्रॉपर्टीज कॉमन रहती हैं। इसी तरह मैट्रिसेस में अगर आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो आप ऐसे उसके पैरामीटर्स निकाल लेते हैं कि इररिस्पेक्टिव कि आप उसको किस तरह रिप्रेजेंट करें, वो पैरामीटर्स उसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। उन पैरामीटर्स के बेस पे आप सारे डिसीजन लेते हैं। उसकी एग्जाम्पल ये है, यहाँ एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी, कि वी कंपोजिशन मैट्रिक्स में
ए का डिकम्पोजिशन से मुराद है कि आप एक वी लेंगे जो हम डिफाइन करेंगे, फिर डायगोनल ऑफ लैम्डा हमने डायगोनल सीखा है, हमें इनवर्स आता है, तो वी को डायगोनल लैम्डा और वी इनवर्स का जो कैलकुलेशन करें तो उसमें ए का जो आंसर आएगा वो हमें इसके डिकम्पोज्ड रिजल्ट्स को बताएगा। इसमें वी जो है वो आइगन वेक्टर्स हैं और लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यूज हैं। अगर आप के पास ए के आइगन वेक्टर्स की एक मैट्रिक्स और एक उसकी आइगन वैल्यूज का डायगोनल मैट्रिक्स हो और एक उसका ये इनवर्स हो वी का, इनको आप मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये ए के बराबर होगा। और ये जो वी और लैम्डा है ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ ये एक एग्जाम्पल उसने कहा है कि अगर आपका ए ये है तो उसकी आइगन वैल्यूज ये हैं, ये आंसर है, और उसके आइगन वेक्टर ये हैं, यानी इस आइगन वैल्यू के लिए ये आइगन वेक्टर, इस आइगन वैल्यू के लिए ये आइगन वेक्टर। How many of you know this eigenvector and eigenvalue thing for eigen decomposition of a matrix or have come across that? No? Okay. ये अब हमारा लेट्स से दैट विल बी अवर लास्ट मेजर थिंग जहां ये सारे चीजों को आप कल्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं आपको डिफाइन करता हूं, इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करेंगे, आप करके आए, नहीं आपको आएगी तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली इसके अंदर आइगन वेक्टर क्या चीज है कि अगर एक वेक्टर कोई भी वेक्टर है नॉन जीरो वेक्टर, उस पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के साथ आप उसको अगर अप्लाई करें या मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर खाली स्केल होता है, यानी उस वेक्टर को एक स्केलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो बात बन जाती है अगर आपने इस वेक्टर को इस ए से मल्टीप्लाई किया है। यानी अगर आपने ए का असर इस वेक्टर पे डाला और उसका नतीजा नहीं निकला कि खाली वो वेक्टर रहा और वो स्केल हो गया, तो इस सूरत में ये जो लैम्डा है ये आइगन वैल्यू है और ये जो वेक्टर जिसने ये बिहेवियर शो किया है ये आइगन वेक्टर है। ये सिंपल उसकी कि अगर आपका ये वेक्टर एक्स था जैसे उसने शो किया है, इसके ऊपर अगर आप मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट क्या बने, ये वेक्टर बन जाए विच इज नथिंग बट एक्स मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। अगर एक्स को आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें खाली उसकी लेंथ चेंज होती है तो लैम्डा एक्स बन जाएगा। अगर आप का ये इस सूरत में आप कहोगे कि ये मेरा एक्स जो था इट वाज एन आइगन वेक्टर और ये यहाँ जो लैम्डा आया है इट्स एन आइगन वैल्यू, तो ये चीज को कैलकुलेट करके अगर आप वेक्टर्स, ये वेक्टर्स पता कर लें क्या है और ये लैम्डास की, ये लैम्डा एक लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री है, ये वेक्टर भी v1 v2 v3 v4 है। अगर आप ये फाइंड कर लें तो आपने आइगन डिकम्पोजिशन कर ली, यानी आप कह रहे हैं यहां पर कि इट इज ए, हम ये कह रहे हैं यार ये आपने कैलकुलेट करना है ये ओके ये मैं ले लूँ यानी हम सिंपली ये छोटी सी बात कह रहे हैं यहाँ जिसको आपने कैलकुलेट कर, ये आप कैलकुलेट करोगे फॉर दैट एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाई है। हम कह रहे हैं कि ये ए अगर एक ये वेक्टर के साथ आप करें और उसके रिजल्ट में ये वेक्टर सिर्फ स्केल हो तो ये वेक्टर आइगन वेक्टर होता है और ये आइगन वैल्यू होती है। इस बात को आप इस तरह भी लिख सकते हो ए इंटू वी, अगर ये बिहेवियर है तो किसी भी वेक्टर को आई से मल्टीप्लाई करें तो वो अनचेंज रहता है, तो हम इसको आई वी भी लिख सकते हैं, आई वी और लैम्डा। ये चीज की जगह ये लिखा जा सकता है किसी वेक्टर को आई से, आई इज लाइक वन इन, तो आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा। इस बात को आप लिख सकते हो कि ए वी माइनस लेमडा आई वी इक्वल टू 0।
तो अगर आप v कॉमन निकाले तो a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। वेक्टर अगर नॉन जीरो है तो इससे यहां यह v कॉमन है यहां, मगर ये v अगर नॉन जीरो है तो इसको जीरो। अगर आप इसे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये चीज ये बन गई, ये वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा आई। तो अगर आप a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लें, उसमें से लेमडा फाइंड कर लें और उसी से आप वेक्टर फाइंड कर लें, तो आपको आइगन वेक्टर भी पता चल जाएगा और आइगन वैल्यू का वेक्टर भी। ये वेक्टर है लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3। अगर ये 2/2 के लिए करें तो लेमडा 1 लेमडा 2 होगा, और इसी तरह ये v है तो अगर 2 के लिए करें तो v1 v2 होंगे वेक्टर्स। ये आपने फाइंड करने, v1 v2 लेमडा 1 लेमडा 2। इसके लिए ओके, ये मैं इसकी सॉल्यूशन की एग्जांपल है जो इसमें डली हुई है, आप उसे देखें। ये सारा कुछ जो आपने अभी सीखा है उसके जरिए से उसको सॉल्व करें और फिर नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताएं। अगर ये आप सॉल्व कर लेते, दिस इज द लास्ट थिंग फॉर दिस लीनियर अलजेब्रा। इसमें सारी चीजें आपकी कल्मिनेट हो गई, इकट्ठी हो गई, आपको सारे मामलात से एक बहुत ही यूजफुल चीज आपने कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और आइगन डीकम्पोजिशन सीख ली। ये उस एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपसे बात कही है, ये उसका सोल्यूशन है। जो हमने कहा कि अगर ये a माइनस लेमडा आई, ये a दिया हुआ है और a माइनस लेमडा आई की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें और फिर इससे आइगन वेक्टर फॉर ईच आइगन वैल्यू फाइंड कर लें, तो आपने डिकम्पोजिशन कर ली। आइगन डिकम्पोजिशन उसे कहते हैं, ये उसका सोल्यूशन है। इसको समझ के आपने नेक्स्ट टाइम आना है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है, अदरवाइज मैं आपको उसकी एक और एग्जांपल दूंगा जो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि दैट बस ये आइगन डिकम्पोजिशन पे वी विल एंड अप अवर दिस थिंग। आइगन डिकम्पोजिशन ये चीज है कि ये v इनटू डायगोनल ऑफ v इनटू दिस निकालते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए जो v है ये हम ये आइगन वेक्टर्स के सेट से निकालते हैं। तो ये आपको सॉल्व करना आए, ये 2/2 के लिए यही काम 3/3 के लिए कर सकते हैं। हाँ, वो भी एग्जांपल आपको हम दिखाएंगे, बट दैट वी विल स्टॉप हियर एज फॉर लीनियर अलजेब्रा इज कंसर्न्ड। दिस इज योर लास्ट थिंग विच यू हैव लर्न। इसमें आपने वो सारे डायगोनल तो ये वो वाला वाला चीजें, नॉर्मल आपका पास्ट का जो अलजेब्रा था, मेकिंग फैक्टर्स, कैलकुलेटिंग, ये देखिए यहाँ फैक्टर्स बनेगा और कैलकुलेट होगा, वो भी रिवाइज हो जाएगा और इस्तेमाल हो जाएगा। Okay, next time we'll start from the other than this problem which you have solved and you have question, then we'll start with that probability and information theory. Okay, Allah Hafiz.